ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਤੇ ਮਿੱਠੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਫਗਵਾੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਵਿਊਅਰਸ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਇਸ ਵਕਤ ਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਗਵਾੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸ਼੍ਰੀ ਮਲਿਕਾ ਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਗਠਬੰਧਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਟਕ ਦਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਬੈਠਕ ਚੱਲੀ। ਲੰਬੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਗਠਬੰਧਨ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਰਹਿਣ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਇਕੱਤਰਿਤ ਖੜੇ ਨੇ ਔਰ ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਮਲਿਕਾ ਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਜੀ ਨੇ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਗਠਬੰਧਨ ਦੇ 295 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਸੀਟਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਰਵੇ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ, ਗਠਬੰਧਨ ਦੇ ਨੇਤਾਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੈਡਰ ਕੋ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਕੈਡਰ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਰਵੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਰਵੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਵੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਿਲਡਅਪ ਕਰਨ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਰਵੇ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਸ ਦੁਆਰਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗਠਬੰਧਨ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 295 ਪਲੱਸ ਸੀਟਾਂ ਇੰਡੀਆ ਗਠਬੰਧਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੋ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਸਰਨ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਔਰ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਮਲਿਕਾ ਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ। ਔਰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਇੰਡੀਆ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਗਠਬੰਧਨ ਦੇ ਘਟਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ DMK ਦੇ ਨੇਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਤੇਜਸਵੀ ਜੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ UP ਤੋਂ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਜੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ 'ਚ CPM CPI ਦੇ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਵਯ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਸੁਣੋ ਹੁਣ ਮਲਿਕਾ ਅਰਜੁਨ ਜੀ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ। इंडिया गठबंधन के सभी नेतागण, मीडिया के मेरे दोस्तों और यहाँ पर पधारे हुए दूसरे पार्टी के भी जो कार्यकर्ता हैं, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हमारी बैठक हुई, कम से कम 2.5 घंटे तक हमने बहुत से विषय पे चर्चा किए, खास करके चुनाव और चुनाव के वक्त क्या क्या कमज़ोरियां हो सकते हैं और क्या क्या कठिनाइयां आ सकते हैं, किस ढंग से उन चीज़ों को हम निभाना है और करेक्शन कर लेना है और हमारे कार्यकर्ताओं को जो इंस्ट्रक्शन देना है, तो उसके बारे में आज हम डिटेल चर्चा करके काउंटिंग के दिन जो हमको केयर लेना चाहिए। और हमारे कार्यकर्ता, अब बहुत से गठबंधन पार्टी के नेता लोग पहले ही वो तय करके अपने केडर को बहुत से बार बोले हैं, लेकिन फिर भी हम एज ए प्रिकॉशन आज सब मिलके सबको एक इशारा देना था कि हम किस ढंग से इस
आते चुनाव के दिन लड़ना चाहिए और बोलना चाहिए। ये चीज़ पे हमने चर्चा की। दूसरा, हमारा जो गठबंधन का जो एक निर्णय ये है कि हम जो आज बीजेपी और उनके साथी लोग खास करके एग्जिट पोल पे बहुत वो लोग चर्चा करेंगे और इसीलिए लोगों में कंफ्यूजन नहीं होना और वो जो नैरेटिव देने की कोशिश कर रहे हैं उसको हमने सच्चाई इस देश के लोगों को बताना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन कम से कम 295 सीटें प्लस 295 से ज़्यादा आएंगे, कम तो नहीं आएंगे। ये हमने आकलन किया कि सभी हमारे नेताओं से पूछने के बाद ये एक आंकड़ा हमारे पास मिला है और इस आंकड़े में कोई बदलाव नहीं है। ये एक जनता की सर्वे है, हमारा सर्वे नहीं है। जो जनता ने सीधा हमारे को कहा है और हमारे नेताओं को जो इन्फॉर्मेशन दिया है, ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाया है, उस आधार पर ये हमने आज आप लोगों को बता रहे हैं। सरकारी सर्वे तो होते हैं क्योंकि उनके पास बहुत से आंकड़े बनाने का, बिगाड़ने का ये पहले से भी है और उनके चंद जो मीडिया के दोस्त हैं उसको हाई फाई करके वो भी लोग बताते हैं। इसीलिए हम आपको सत्य बताना, रियलिटी बताना, जनता का क्या मन है, जनता जो कहती है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। और पूरे ऑल पार्टीज का एक दूसरा भी एक इंस्ट्रक्शन है कि हर कैडर को इसके बारे में बताना, सिर्फ इसके लिए नहीं, जो पहले मैंने कहा इलेक्शन में किस ढंग से आखिरी तक बैठना, सी फॉर्म लेना और दूसरे जो फॉर्मेलिटीज़ है वो कंप्लीट होने तक कोई काउंटिंग हॉल से बाहर नहीं निकलना चाहिए टिल ही गेट्स सर्टिफिकेट। ये हमारे जो भी इंस्ट्रक्शंस थे हमने दिए हैं और सभी लोग एक मत से इसको स्वीकार किए हैं। इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि हमने इतनी कोशिश इकट्ठा होके हमने की है और ये इकट्ठा होने के वजह से आज ये फिगर आपके सामने हम रख रहे हैं। और दूसरा इलेक्शन कमीशन के पास भी हम जाएंगे, हम बताएंगे क्योंकि पहले बैलेट पेपर चंद जगह बाद में गिनते थे, उसमें भी गड़बड़ी हो सकती थी और दूसरे चीज़ों में भी गड़बड़ी हो सकती थी। इसीलिए हम इलेक्शन कमीशन के पास जाके हमारे गठबंधन के लीडर उनको जो कुछ भी हमारे शिकायतें हैं उनके सामने रखेंगे और उनको करेक्शन करके, जो मॉडिफिकेशन करके जो ऑर्डर निकालना है और हर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भेजना है या रिटर्निंग ऑफिसर को वो भेजे, जल्द से जल्द ये काम करें। कल हमने समय मांगा है और टुमारो, यस, कल बोले तो टुमारो, तो समय मांगा है। इसीलिए वो समय आते ही हम सब लोग मिलके उनसे ये प्रार्थना करेंगे कि भाई जो जो चीज़ें हमने अपने मेमोरेंडम में बताए हैं उसका रेटिफाई करो। यही चीज़ आज अब तक हमारा हुआ। मैं सबको धन्यवाद देता हूं जो हमारे गठबंधन के नेता लोग हैं, सभी लोग अटेंड हो गए और खासकर सीनियर लीडर्स यहाँ जो है, बालो साहब भी है, केजरीवाल जी है
हमारी कल्पना जी भी है, पवार साहब तो पहले भी आए थे, वो पहले से तेजस्वी है, और हमारे अखिलेश जी है, और चंपन सुरेश जी है, और ये येचूरी साहब है। अब मैडम गांधी तो हमारी लीडर है, तो और राहुल जी है, और राजा जी तो कहीं नहीं तो दिखते तो है वो, मालूम है। उसके बाद में हमारे CPIM के ML के नेता है, सभी हमारे शिवसेना भी है, सब। अब माफ़ करना कोई भूल गया तो भी आपको, लेकिन सब लीडर अटेंड करके सीरियसली डिस्कशन करके इस नतीजे पे हम आए हैं, और निश्चित रूप से गठबंधन को भारी बहुमत मिलेगी, ये मैं आपको कहने के लिए यहाँ ठहरा हूँ। नमस्कार। हाँ, नहीं, मैं बोला सरकारी एग्जिट पोल एक नहीं बोला, वही बोला। इंडिया पार्टी ये है, जनता का सर्वे हमारे पास है, सरकारी सर्वे उनके पास है। मैंने कहा थैंक यू। वी आर यूनाइटेड ओनली, व्हाई यू आर डिवाइडिंग? शुभ शुभ बोलिए। हाँ, और हमें नहीं भाई, इतने लोग यूनाइटेड है, ये बालू जी ऐसा ठहरे हमारे सामने, वो झाड़ के जैसा, इतने लंबे हैं, और सभी लोग हैं, केजरीवाल जी है, अखिलेश साहब है, तेजस्वी है, येचूरी साहब है, राजा साहब है, सभी लोग हम यहाँ पर पवार है, और मान है सबसे बड़ा चीफ मिनिस्टर पंजाब, ये सभी लोग हैं। इसीलिए हम एक है, एक रहेंगे। हमारे को डिवाइड करने की कोशिश मत करो। नमस्कार, थैंक यू। नहीं, थैंक यू। गुड गुड, थैंक यू एवरीवन।